We are continuing today class 9 CBSE subject mathematics topic chapter number 2 polynomial. In the previous topic we can already learn about the factor theorem and factor by splitting of middle terms. Today we see algebraic identities. Algebraic identities. What does the algebraic identities say? In algebraic identities, there are some formulas are given to you. With the help of this formula, you can solve the various type of questions. ठीक है? इसके सहायता से जैसे some identities are given to you. Then identity number 1. What the identity number 1 say? X plus y whole square is equal to x square plus twice xy plus y square. Previously you can already use this identity. पहले भी अपन इसका यूज कर चुके हैं. Then identity number second. What x minus y whole square. X minus y whole square is equal to x square minus 2xy plus y square. Then identity number 3, that is x square minus y square, x square minus y square, x plus y, x minus y. Then identity number 4, that is x plus a, x plus b. Both the terms of identity is same. Then we use this identity x square plus a plus b, x plus a into b. Okay, these are the four identities. There are again some identities in first we write down all identities from your textbook. Identity number 5. Identity number 5. Then we solve continue all the problems. Okay, पहले अपन सभी identities लिख लेते हैं. X plus y plus z. X plus y plus z whole square is equal to x square plus y square plus z square twice xy twice yz plus twice zx. Okay, these are the identity number 5. Then identity number 6, that is identity number 6. What is identity number 6? X plus y whole cube. Okay, x plus y whole cube is equal to x cube plus y cube, x cube plus y cube plus 3 times of xy, 3 times of xy, x plus y. Then identity number 7, identity number 7. What does it say? X minus y whole cube. In place of x minus y whole cube is equal to x cube minus y cube minus thrice xy, x minus y. Okay, then this is the which identity? This is your 7th identity. Again, any identity given is to you. Identity number 8. Identity number 8. That is x cube plus y cube plus z cube, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz minus 3xyz is equal to x plus y plus z. First bracket में क्या लिखेगा? x plus y plus z, then x square plus y square plus z square, then minus xy minus yz minus zx. Okay, these are the 8 identities are there. First identity x plus y whole square is equal to x square plus twice xy plus y square. X minus y whole square is equal to x square minus twice xy plus y square. Third identity x square minus y square is equal to x plus y x minus y. Fourth identity x plus a x plus b is equal to x square plus bracket a plus b, a into b,
a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, फोर्थ आइडेंटिटी क्या है फिर से देख लीजिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी दो ब्रैकेट में अलग अलग लिखा होता है, तो जब दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेम रहेंगी तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये हो गया अपने फोर्थ बेसिक आइडेंटिटी दैट यू ऑलरेडी नो। देन प्रीवियसली न्यू आइडेंटिटीज आर देयर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, टॉइस एक्स वाई, टॉइस वाई जेड, टॉइस जेड। आइडेंटिटी नंबर 6, x plus y whole cube, that is x cube plus y cube plus z cube plus thrice xy in bracket x plus y. Then x minus y whole cube, x cube minus y cube minus 3xy 3 times minus x minus y. Last one is x cube plus y cube plus z cube plus 3xyz in the first bracket x plus y plus z, in second bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. In this way first we write down all these identities. पहले क्या कर लीजिएगा, पूरे आइडेंटिटी को एक बार आप लिख लीजिएगा, एक बार उसको दो प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप इजीली आपको याद हो जाएगा। और एक बार आपको सभी आइडेंटिटीज याद होगी तो आप इजीली सॉल्व करने जाते हैं। देन वी विल कंटिन्यू योर एक्सरसाइज नंबर 2.5। ओके, बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। यहाँ पर आपको दिया है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, आपको जो आइडेंटिटी सुटेबल जाएगी, क्या बोला है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज to use to find the following products, to find the following products। नीचे दिए हुए प्रोडक्ट्स को सॉल्व कीजिए। ओके, फर्स्ट x प्लस 4 x प्लस 10। आगे ध्यान में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। कौन से फर्स्ट टर्म इज सेम, बराबर बोल रहा है x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स। ओके, इसको लिखते थोड़ा सा स्टूडेंट लिखिए, ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10, एक्स की जगह एक्स है, ए की जगह 4 है, बी की जगह 10 है। आइडेंटिटी नंबर 1, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, पहले दो टर्म के एडिशन 4 प्लस 10 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 4 इंटू 10। ओके, देन एक्स स्क्वायर 4 प्लस 10 14x प्लस 4 इंटू 10 14। इन दिस वे एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 14 फर्स्ट आइडेंटिटी। देन प्रॉब्लम नंबर सेकंड, क्या बोला सेकंड में, x प्लस 8 x माइनस 10, x प्लस 8 x माइनस 10। चाहे तो आप हर बार ऐसा लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी, कौन से आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं आप, विच आइडेंटिटी यूज, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस b x प्लस a। फिर फॉर्मूला प्रॉब्लम लिख लीजिए अपना, क्या प्रॉब्लम है, दैट इज x प्लस 8 x माइनस 10। ओके, इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म सेम एक्स स्क्वायर प्लस इन दो टर्म के एडिशन 8 या माइनस 10 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 8 इंटू माइनस 10। ओके, देन एक्स स्क्वायर 10 माइनस 8 माइनस ट्वाइस x 8 इंटू 10 माइनस 10। यानी इन दिस वे वी शुड गेट फैक्टराइज दिस। इस तरह से आप इसको क्या कहते हैं, सिंपलीफाई करें। ठीक है, टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इन दो प्रोडक्ट को आपने क्या किया, सॉल्व किया। देन इसी में प्रॉब्लम नंबर कौन सा है, थर्ड। ओके, वी विल कंटिन्यू बाय दिस इज 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x माइनस 5 यूजिंग आइडेंटिटी।
क्या आइडेंटिटी है आपकी, चेक करो। 3x + 4 3x - 5 दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेम है। देन 3 यूजिंग आइडेंटिटी, पहले आइडेंटिटी है तो आप लिख सकते हैं x + a x + b x स्क्वायर ब्रैकेट में a + b x + a * b, फिर राइट नंबर ऑफ टाइम्स। अब बार-बार लिखेंगे ना वैसे तो आपको पूरी आइडेंटिटीज याद हो जाएगी, पहले थोड़ा सा आपको और लगेगा लेकिन फिर आप कर सकते हैं इजीली। 3x + 4 3x - 5, ओके। फर्स्ट टर्म से 3x² प्लस दोनों टर्म के एडिशन 4 - 5 ब्रैकेट के बाहर 3x प्लस इन दोनों का गुणाकार 4 * -5, ओके। 3 का स्क्वायर 9x², 4 - 5 - 1 into 3x, 4 * -5 - 20, then 9x² minus 3x minus 20. In this way you solve this identity। इस तरह से आपने क्या किया, आइडेंटिटी को सॉल्व किया। यहीं पे प्रॉब्लम नंबर 4, देयर आर 5 प्रॉब्लम्स आर देयर। प्रॉब्लम नंबर 4, y² + 3/2 y² + 3/2। सेकंड इसमें क्या है, y² - 3/2। अब देखो दोनों टर्म सेम है और यहाँ पर एक बार प्लस है एक बार माइनस है, उसी चीज आइडेंटिटी यूज करेंगे। बराबर सोच रहे हैं आप, यूजिंग आइडेंटिटी। विच आइडेंटिटी वी कैन यूज हियर, दैट इज x + y x - y = x² - y²। कोई टेस्ट में a + b a - b भी लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देन आपके पास है y² + 3/2 in one bracket, y² - 3/2 in second bracket, a + b x + y x - y क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है y² माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, क्या होगा चेक कीजिए, y⁴ minus 3 का स्क्वायर 9/4। In this way you can find out the product of these two terms। इस तरह से आपने दो टर्म का प्रोडक्ट निकालना। अगेन वन प्रॉब्लम इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 5। क्या है प्रॉब्लम 5 में, चेक करो। 3 - 2x 3 + 2x 3 - 2x 3 + 2x, ओके। a - b a + b, ओके। यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज की अपन ने, x - y, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x + y = x² - y²। आपका ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लिख रहे हैं आप 3 - 2x 3 + 2x 3 - 2x 3 + 2x। कभी कभी देखो मैं a + b भी लिखते हैं, इसको कोई गलत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ओके। फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 3 यानी 3² माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या आपके पास 2x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4x²। इन दिस वे यू शुड यूज द आइडेंटिटीज। इस तरह से आपने क्या किया, उसको आइडेंटिटीज को यूज किया। अभी अपन कुछ आइडेंटिटीज यूज करके फिर आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन यू सॉल्व, क्या सॉल्व कर रहे हैं आप, क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, यू विल कंटिन्यू योर एक्सरसाइज 2.5, ओके। 2.5 क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, evaluate the following products, okay, without multiply directly, without multiply directly, यानी आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या है चेक करो, 103 into 107 make it easy, 100 plus 3 100 plus 7,
इसको ऐसा लिखिए कि आप एक आधी आइडेंटिटीज को अप्लाई कर सकें। आपके पास आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है? यूजिंग आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी यूज हियर? x plus b is equal to x plus ब्रैकेट में a plus b x plus a b, ओके। x plus a x plus b x square plus a plus b into x plus a b, दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेम है। हियर अप्लाई दिस आइडेंटिटी, क्या होगा? 100 plus 3 100 plus 7 100 स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म की एडिशन 3 plus 7 ब्रैकेट के बाद x सेक्शन क्या है आपके पास यहाँ पर? 100 प्लस a into b, a की जगह क्या है? 3, b की जगह क्या है? 7, तो आप क्या कर रहे हैं? 3 into 7, 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, ओके, प्लस 3 plus 10 into 100 plus 3 7 का 21, 1000 that is 10,000 plus 1 1 2 1 1 2 3 plus 1, आप एडिशन कर रहे हैं 1 1 0 0 1। In this way you should complete this 1 0 1 1 और ये क्या है? 21 है, यहाँ क्या आएगा? 1 1 2 1, ओके। 100 स्क्वायर 10,000, 3 in plus 7 10, 3 7 का 21, 21 plus 10 into this 1000 हो गया। इन तीनों के एडिशन करने के कितना हो गया? 1 plus 1 plus 1, 2 plus 0 plus 0 2, 0 plus 0 0, 1 plus 0 1 and then 1। So this way you use this identity। इस तरह से आपने क्या किया? यहाँ पर इस आइडेंटिटी का क्या यूज किया। Then next identity is प्रॉब्लम नंबर सेकंड। क्या दिया आपके पास? 95 into 90। इसको दो तरीके हैं, एक तो आप 100 minus 5 100 minus 4 लिखो, या फिर एक सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं आप 90 plus 5 90 plus 6, हो गया। फिर आपकी आइडेंटिटी आ गई, कौन सी? यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी आती है आपकी? यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी आपके पास? x plus a x plus b x square plus a plus b, ठीक है ना? क्या लिख रहे हैं? a plus b ब्रैकेट के बाहर x plus a plus b x plus a x plus b, x के जगह क्या है? a 90 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 5 plus 6 into 90 plus 5 into 6 बराबर बोले में a square plus a plus b into x plus a, ओके। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 plus 6 11 into 90 प्लस 5 6 30 8 1 0 0 11 9 99 और ये 0 प्लस 30 0 plus 0 plus 0 0, इस तरह से एडिशन कीजिए आप। 0 plus 9 9 9 plus 3 12 और 1 9 plus 1 10 10 plus 1 11 कैरी 1 9 1 2 0 एंड इसका आंसर क्या आ गया आपका? 9 1 2 0। आपने एक्चुअल मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पर, यू कैन नॉट डू एक्चुअल मल्टीप्लाई, तो यूज द आइडेंटिटीज दैट आर गिवन टू यू। तुम्हारा तुमको जो आइडेंटिटी थी उसका आपने यूज किया और उसको क्या किया आपने? सॉल्व किया। इसी का प्रॉब्लम नंबर थर्ड सॉल्व करना है। क्या है प्रॉब्लम नंबर थर्ड? चेक कीजिए। 104 into 96, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? 100 plus 4 और इसको 100 minus 4। अब देखो जैसे आपने प्रॉब्लम लिखी आपके दिमाग में आइडेंटिटीज आ जानी चाहिए। a plus b a minus b बराबर हो रहा है यूजिंग आइडेंटिटी। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा भी लिख सकते हैं आप a plus b a minus b is equal to a square minus b square, या फिर x plus y x minus y x square minus y square। अब यहाँ a की जगह क्या है? 100 यानी 100 स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है? 4 यानी 4 स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 1000 दैट इज 16
0 minus 6 4, then 9, then 9, then 9, 9 9 कितना है इसका आंसर, that is 9 9 4 triple 9. ओके, तो फिर से चेक कर लीजिए, 0 minus 4 हो गया, सॉरी 0 minus 6 कितना आ गया 1, यहाँ पर क्या आएगा 8 है, बराबर है ना, that is 0 minus 2, that is 9 9 8 4. Here all of us, here आपने क्या किया, सब जगह क्या किया, आइडेंटिटीज यूज की. अब क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 3. क्या बोले क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 3 से, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज. फैक्टराइज द फॉलोइंग using appropriate identities. सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करके आप इसको सॉल्व कीजिए होता है. क्या है सुटेबल आइडेंटिटीज, आपका चेक करो. 9x², ना पहला प्रॉब्लम है 9x² प्लस 6xy प्लस y². आप यहाँ पर एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं. अब एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं कहने का मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखिए. ओके, दिस इज इसका फॉर्म है, देखो काय का स्क्वायर है 3x² प्लस 2 into 3x into y. चेक कर सकते 2 3 6 into y प्लस y². ओके, ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया यूजिंग आइडेंटिटी. कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सोचिए थोड़ा सा. आइडेंटिटी बराबर सोच रहे आप, x प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² 2xy प्लस y². x² x की जगह 3 है, ट्वाइस ab प्लस b². इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया आपका, x की जगह क्या है आपका, इन प्लेस ऑफ x प्राइस x, और y की जगह क्या आ रहा है आपका, इन प्लेस ऑफ y होल स्क्वायर. देयरफॉर आप आंसर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 9x² प्लस 6xy प्लस y² इज इक्वल टू 3x प्लस y का होल स्क्वायर. ओके, आ रहा है थोड़ा सा यूजिंग आइडेंटिटी. अब देखो यहाँ पर अपन a प्लस b यदि लिखते हैं आइडेंटिटी में तो भी आंसर हो जाता है. जनरली a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b². मैं मैंने वेरिएबल क्यों चेंज किया, यहाँ पर x है, a² यानी 36. हो गया, ट्वाइस ab ट्वाइस 36 into y प्लस y². इस तरह से आपने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइज करनी है. ओके, देन 4 विल कंटिन्यू. प्रॉब्लम नंबर 2, इसी का सेकंड कर लेते हैं आप. 4y² माइनस 4y प्लस 1. आ रहा है कुछ ध्यान में, आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है, क्या स्क्वायर है 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 into 2y into 1. चेक करो 2 2 4 4 into 1 1 प्लस 1². हो गया, a² माइनस ट्वाइस ab प्लस b². ओके, कौन सी आइडेंटिटी आ रही है यहाँ पर, यूजिंग आइडेंटिटी. This identity to use a minus b whole square is equal to a² minus twice ab plus b². मैंने x y तो वेरिएबल a भी लिया, a भी वेरिएबल दूसरा ले. तो क्या आएगा इसका आंसर, इन प्लेस ऑफ a क्या है मेरे पास 2y माइनस इन प्लेस ऑफ b 1 का होल स्क्वायर. देयरफॉर आप आंसर लिख देंगे 4y² माइनस 4y प्लस 1 is equal to 2y minus 1 का होल स्क्वायर. प्रॉब्लम नंबर 3, x² माइनस y² by 100. x² माइनस y² by 100 क्या लिख रहा है आपको, x² माइनस इकाई का होल स्क्वायर लिख रहा है, y by 10 का होल स्क्वायर. ओके, x² माइनस y by 10 क्या हो गया, a² बराबर कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं आप, यूजिंग आइडेंटिटी.
which identity used to a square minus b square is equal to a plus b, a minus b, that is x plus y by 10। एक बार आप लिख रहे हैं x plus y by 10, दूसरे बार लिख रहे हैं x minus y by 10। ओके, therefore अब आंसर क्या लिख रहे हैं, that is x square minus y square by 100 is equal to x plus y by 10, और सेकंड ब्रैकेट में आप क्या लिख रहे हैं, x minus y by 10। ओके, here we use the identities। अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू कर दिया आपने यहाँ पर कौन से आइडेंटिटीज किया, पहले इसमें आपने यूज किया x प्लस a x प्लस b, x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस b इंटू x। फिर सेकंड थर्ड प्रॉब्लम आपने कौन से आइडेंटिटी यूज किया, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, या फिर इसी को अपन x इन प्लेस ऑफ x y लिखते हैं तो x माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x प्लस y स्क्वायर, और x प्लस y x माइनस y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। 4 आइडेंटिटी यूज करके आपने प्रॉब्लम कंप्लीट किया। देन इन द नेक्स्ट पीरियड वो यूज द क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7, थोड़ा सा लेंदी हो गया तो वी आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं अपलोडिंग करने बाद। दैट्स व्हाई हियर वी फिनिश्ड टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द डिफरेंट आइडेंटिटीज। इस तरह से आप इस वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, केयरफुली शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए। सी यू बाय लेटर।